Now, because we are already discussed whole of the chapters, and we reached to the last topic of this chapter. So today's our topic is decentralization in India. How the power is divided, how the power is given to local government. This we will read. This we will discuss. That in India there is a system of, you also heard about the rural self-government and urban. These are two parts. Rural, it is related to the villages, rural areas, where the power is shared between three levels. On the other hand, there are urban areas, like we can in cities, there is a system of power sharing in another institution. So today we will discuss all these things, and later we will discuss about what are the achievements of rural government and local self-government, and what are the challenges of this government. So let's start. So our topic is decentralization in India. There is a system of decentralization, how the power is given to local government, and local government, it is also divided, we can say, in rural areas and in urban areas. Different institutions are set up for the smooth running of administration. We already, as you know, that we already done about the decentralization, meaning of decentralization, need of decentralization, what is the reason that these decentralization ideas that it worked in our constitution framers that time, later because of the amendment, that is, you everybody know, 1992 amendment, and in this the 73rd amendment and 74th amendment. 73rd amendment is related to the rural government, and 74th is related to the urban government. So through these we know now what are the new features that added in these local self government. Like some features we already discussed about that, like separate election commission was there, 1/3 seats were reserved for women, regular election, resources were there, states also it's essential to pass its resources and another political parts with the local government. So in this way we see that now the because of this change, because of this amendment, now the democracy is more deeper. So now we will discuss how this decentralization that occurs in India. First of all, there is a rural local government. So we will understand रूरल लोकल गवर्नमेंट. आप लोगों ने पंचायत समिति सुना होगा, है ना. फैमिली के अंदर हो सकता है किसी के पेरेंट्स वगैरह भी पंचायत समिति में होते हैं, तो उसका मतलब क्या था. पंचायत समिति, स्कूल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह होता है, उसका क्या मतलब होता है. तो आज हम एक बेसिक चीजों को समझेंगे. देखिए, पंचायत समिति जो है सबसे बेसिक यूनिट, रूरल एरिया की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, विलेज. ठीक है, एक विलेज का एरिया पे डिपेंड करता है. अगर वो विलेज का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम सिंगल विलेज की भी बात कर सकते हैं, और अगर विलेज छोटे हैं तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, 2-3 विलेजेस जो है वो मिलाकर भी क्या बनाते हैं, पंचायत समिति. अब पंचायत समिति कैसे फॉर्म होती है ये हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक बात करते हैं बच्चों, पंचायत समिति का फॉर्मेशन होता है ग्राम सभा से. ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इट मीन्स कि वो सारे पर्सन उस पर्टिकुलर गांव के या 2-3 जो विलेजेस हैं उन सब गांवों के जो पर्सन वो अटेन द एज ऑफ 18 एंड अबव, मीन्स वी कैन से अडल्ट पॉपुलेशन. जो वो अडल्ट पॉपुलेशन है, दे चूज द पीपल, दे चूज द मेंबर्स ऑफ दिस पंचायत समिति. यानी ग्राम सभा किसको बनाता है, ग्राम सभा बनाता है, इलेक्ट करता है पंचायत समिति को. और ग्राम सभा में मेंबर्स कौन होते हैं, वो सारे गांव के लोग, एक गांव के या 2-3 जो गांव मिला के एक यूनिट बनाई है, उस यूनिट के सारे लोग जिनकी एज 18 या उससे अबव है, वो सब क्या है, किसको इलेक्ट करेंगे, पंचायत समिति. ठीक है. अब पंचायत समिति को इलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे पंचायत समिति में मेंबर्स कौन होते हैं. तो मेंबर्स बच्चे आप लोगों ने जनरली सुना होगा सरपंच और पंच. ठीक है. अब सरपंच और पंच का भी इलेक्शन कैसे होता है. सरपंच और पंच के लिए जैसे अपने सिटी के अंदर क्या होता है कि जो हम लोग जो है एमएलए चुनते हैं, क्या होता है कि वार्ड
ना, एक सिटी एक एरिया होता है उसको वार्ड में डिवाइडेड कर देते हैं, उस वार्ड से जो है हर एक विधायक यानी हम एक एमएलए चुनते हैं। इसी तरह से गांव के अंदर जितनी पॉपुलेशन होती है, एरिया होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उस गांव के जो पार्ट जो एरिया होता है उसको वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। 8 वार्ड बन सकते हैं, 9 बन सकते हैं, ठीक है। उन वार्ड से क्या होता है, इन मेंबर्स को चुनते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक हेड होता है पंचायत समिति का, वो कौन होता है, सरपंच, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं पंच, ठीक है। तो पंच मोस्टली मानते हैं कि 5 होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स जो हैं ये किसके, पंचायत समिति के एक हेड हो गए, और बाकी मेंबर्स हैं ये मिलकर क्या करते हैं, गांव के लिए वर्क करते हैं, फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर टेकिंग द डे टू डे डिसीजन। कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। अब सबसे जरूरी है कि ग्राम सभा का क्या रूल है। ग्राम सभा जो है पूरे एनुअल बजट पे, यानी जो पूरे ईयर का बजट बनता है उस गांव के लिए, तो उस गांव का जो बजट बनता है उसको पूरा रिव्यू करना, उसको अप्रूव्ड करना, दैट इट इज सुटेबल, इट इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द विलेज और नॉट सफिशिएंट और सफिशिएंट, तो इट इज टोटली अप्रूव बाय ग्राम सभा। यानी लोगों में, इसीलिए एक 11th क्लास में क्वेश्चन था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम देखना चाहते हैं तो कहाँ है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ देख सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट में, स्पेशली ग्राम सभा में देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी और किसी उसमें नहीं सुना होगा कि वहां का जो बजट है वो लोगों से अप्रूव्ड होता है, बट इन दिस द पर्टिकुलर विलेज बजट इज अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा पीपल, तो वो अप्रूव्ड करते। प्लस पंचायत समिति कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, 2 चीजें हम है, अप्रूव्ड एनुअल बजट, सेकंड रिव्यू द परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति के जिनके मेंबर्स को इन्होंने इलेक्ट किया है वो वर्क अकॉर्डिंगली कर रहे हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स नीड्स ऑफ द पीपल, कि इतने सेंसिटिव है या नहीं है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। सारी परफॉर्मेंस को असेस कौन करता है, ग्राम सभा पीपल। अब ग्राम सभा जो अगर पंचायत समिति की मानते हैं कि 2-3 मीटिंग्स ईयरली होनी चाहिए, बट इट इज नॉट वेरी कंपल्सरी। अगर जरूरत पड़े तो इससे ज्यादा भी हो सकती है कि भाई अगर ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, एट दैट कंडीशन दे कैन कॉल अ मीटिंग, बट 2-3 मीटिंग्स इज वेरी एसेंशियल फॉर रनिंग द पंचायत समिति। तो ये था पंचायत समिति में आपको बहुत ज्यादा ब्रॉडली, जिसको कहते हैं ना कि जो आपके कोर्स में नहीं है, हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी थीसिस लिखी हुई है, लेकिन अगर मैंने आपको ये चीजें और समझानी स्टार्ट की, जैसे मैं अभी बता दूं, थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हमने अभी 1/3 रिजर्वेशन की बात की थी विमेन के लिए, उड़ीसा, पंजाब, ये वो मतलब स्टेट है जहाँ पर रिजर्वेशन और इंक्रीज किया है, 50% इंक्रीज कर दिया विमेन के लिए। तो ऐसी कई चीजें 1996 में एक और अमेंडमेंट आया जिसमें और सारी नई चीजें ऐड करी, बट मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए नहीं, बिकॉज व्हाट इज इन योर कोर्स यू हैव टू डू पर्टिकुलर थिंग। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। अब सेकेंड थिंग बच्चों बात करते हैं ब्लॉक। इसके 3 नाम है, ब्लॉक है, मंडल है और पंचायत। ये पूरा हमने पढ़ा था, दिस इज सॉरी इसका ग्राम पंचायत है। सबसे पहले जो बात कर रहे थे हम पंचायत समिति, बाई मिस्टेक लिख गया ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत के बाद जो सेकंड थिंग आती है वो है ब्लॉक, मंडल, और इसका सेकंड नेम है पंचायत समिति। ओवरऑल इसको पंचायत समिति ही बोलते हैं, जो रूरल जो सिस्टम है इसको पंचायत समिति बोलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज ऑल्सो राइट। लेकिन हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत कैसे बनती है, तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा से बनती है। अब हम बात कर रहे हैं मंडल, ब्लॉक या पंचायत समिति। तो आपको एक चीज बताती हूँ, समझ लीजिए कि ये एक गांव है, उस गांव में और छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा एक बड़ा गांव है उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि ये जो छोटे छोटे जो एरिया था, मतलब एक पूरा एरिया के अंदर ये छोटे छोटे गांव थे, तो इन गांव को मिलाकर क्या बनाया, एक ब्लॉक बनाया। ब्लॉक समझ रहे हैं ना, ब्लॉक वैसे भी आप समझते हैं कि क्या होता है। उस ब्लॉक के अंदर ये जो स्मॉल विलेजेस थे, इनमें अलग से, इनमें कोई सेपरेट पंचायत समिति बनाने की बजाय इन्होंने क्या किया, इन सब चारों गांव है उनको क्लब कर दिया। उनको क्लब करने से क्या बन गया, ब्लॉक। अब हम ये समझेंगे कि ब्लॉक कैसा बनता है। तो हमने सबसे पहले देखा ग्राम पंचायत बन गई,
अब यानी हर गांव के अंदर क्या होती है, ग्राम पंचायत जरूर होती है, ठीक है, हर गांव में ग्राम पंचायत हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं कि एक गांव की एक ग्राम पंचायत हो, 2-3 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत भी हो सकती है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। पास पास में गांव होते हैं ना, तो मिलाकर एक ग्राम पंचायत भी बना सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ब्लॉक कैसे बना। तो ब्लॉक के लिए हम देखते हैं कि 2-3 ग्राम पंचायत क्लब टुगेदर, जब 2-3, अब इन सब गांव में क्या है, ग्राम पंचायत है, हमें पता चल गया। ये सारे के सारे जो हम गांव देख रहे हैं, इनमें जो ग्राम पंचायत है, जब ये क्लब हो जाते हैं यानी आपस में जुड़ जाते हैं, तब क्या बनता है, ब्लॉक बनता है, ठीक है। अब इन सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाया है, इन्होंने एक ब्लॉक बनाया है। अब इन ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, इट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत मेंबर्स। अब ग्राम पंचायत मेंबर्स में कौन मेंबर्स थे, सरपंच थे और पंच थे। ये मिलकर क्या करते हैं, ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और ब्लॉक का एक हेड होता है, उसे क्या कहते हैं, पंचायत समिति चेयरपर्सन। ये कौन सा हेड है, ये पॉलिटिकल हेड है बच्चों, ठीक है, ये पॉलिटिकल हेड है। और अगर हम कोई परमानेंट हेड होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो कौन होता है, बीडीओ। बीडीओ का मतलब क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो उससे रिलेटेड सारे प्लान्स जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ये पॉलिटिकल हेड होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। These persons means these members are elected by members of ग्राम पंचायत। तो हमें पता चल गया कि ग्राम पंचायत में कौन मेंबर्स होते हैं, सरपंच और पंच, वो इन मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। तो ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक का मतलब है मंडल जो है, वो उस ब्लॉक के एरिया के लिए जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज हो सकती हैं, वाटर रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, कोई इंटरनल डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे जो मैटर्स है वो यहीं पर ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो थर्ड है वो है जिला परिषद। अब बच्चों वैसे अगर हम देखें तो हमारी एपेक्स बॉडी क्या है, रूरल एरिया की एपेक्स बॉडी है जिला, सेकंड नंबर पे आती है ब्लॉक, और थर्ड नंबर पर आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सिस्टम है। आपको पता है ये जो एपेक्स बॉडी यानी जो जिला परिषद है, इन दोनों को ये सुपरवाइज करता है, ग्राम पंचायत को भी करता है और ब्लॉक भी करता है, क्योंकि ये सिटी में हेड होता है, जो क्योंकि आपको मालूम है एक सिटी है, ठीक है, एक ये सिटी है, उस सिटी के अंदर ही तो ब्लॉक आएगा और ब्लॉक के अंदर ही तो ग्राम पंचायत आएगी। जैसे हमने कंट्री के लिए बोला, ये कंट्री है, ये स्टेट है, ये लोकल एरिया है, तो सब किसके अंदर आ गए, उस कंट्री के अंदर। तो सेम चीज यही है, उस जिला के अंदर क्या आ गए, जिला के अंदर इट इज इंक्लूडेड ग्राम पंचायत, ब्लॉक्स ऑल्सो, ओवरऑल सुपरविजन इज टेकन बाय द जिला परिषद। अब हम देखेंगे जिला परिषद का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को ये इलेक्ट करते हैं, इनके फॉर्मेशन से होता है। अब हमें समझ में आया कि जब 2-3 ग्राम पंचायत क्लब हुई तो क्या बना, ब्लॉक। तो अब हम मान सकते हैं कि जब 2-3 या 4 पंचायत समिति होती है ना, जब वो क्लब टुगेदर होती है तो जिला परिषद बनता है, ठीक है। ग्राम दैट इज 3-4 पंचायत समिति देन क्लब टुगेदर दे फॉर्म द जिला परिषद। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो लीडर्स है यानी इनके जो मेंबर्स हैं जिला परिषद के, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट करता है पंचायत समिति के मेंबर्स। अब पंचायत समिति के मेंबर्स में हमने देखा पंचायत समिति चेयरपर्सन है एंड अनदर मेंबर्स आर आल्सो देयर, दे इलेक्ट जिला परिषद मेंबर्स। अब इनका भी इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, उसमें ये लोग चुनते हैं, प्लस जिला के जो है डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये करते हैं। उसके बाद इनका जो पॉलिटिकल हेड होता है, जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन, ये पॉलिटिकल हेड हो गया। और एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं और कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। दिस इज अ रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन विच द पावर्स इज शेयर्ड इन दीज 3 levels and these are responsible for the development of their area। तो अगर हम इसको और डीप में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, जिसको कि
जिला परिषद के प्रमुख में अदर मेंबर्स कैसे होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो वो एक बहुत डिटेल है। बाकी आपके कोर्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दीज आर सफिशिएंट। अब सेकेंड थिंग जो हम बात कर रहे हैं वो है कि अर्बन एरियाज में क्या होता है। अर्बन एरियाज में आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, और इसीलिए मैंने इसको रे चार्ट से आपको समझाया कि कैसे है। अर्बन एरियाज में आपने सुना होगा म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए अब हम पहले तो इनका मतलब समझेंगे। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटी। आप लोगों ने नगर परिषद बीकानेर में थे पहले, नगर परिषद, नगर पालिका, ये जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होती है इनके भी इलेक्शन होते हैं, है ना, सिटी के लेवल पे। ये कहाँ पर होते हैं? अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरियाज के अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना है कि म्युनिसिपैलिटीज किसमें होती है, स्मॉल सिटीज में होती है ये, या टाउन भी बोल सकते हैं, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो बिग सिटीज में होती है। जैसे कि आपको पता ही है मुंबई, कोलकाता, है ना, चेन्नई, दिल्ली, सब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और बीकानेर में क्या है? सर एक बच्चे का अनम्यूट करना किसी को भी। हाँ, व्हाट इज इन बीकानेर? बीकानेर में क्या है? म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यश उपाध्याय सर। यस यश, हेलो, सब साइलेंट हो गए, क्या हुआ? हाँ यश, जवाब दें आप। मैम हाँ जी बोलिए। मैम वो आंसर बता रहा था मैम। हाँ वापस रिपीट करो, मेरे तक आवाज नहीं आई, रिपीट करो। मैम आंसर बता रहा था मैम कि म्युनिसिपैलिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ तो बताओ को क्या है दोनों में से? एक ही चीज होगी, क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, नाइस। तो बीकानेर में क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपको देखकर हैरानी होगी कि जहाँ मैं दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, मद्रास की बात कर रही हूँ, कोलकाता की, वहाँ बीकानेर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए एरिया प्लस उसकी पॉपुलेशन प्लस उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। हालांकि बीकानेर के अंदर उस कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग जितनी साफ सफाई और ये सारी चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। यही चीज आप दूसरी बिग सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। तो म्युनिसिपैलिटीज जो है, जो कि इनमें म्युनिसिपैलिटीज का क्या काम होता है, इसका क्या होता है, इसके अंदर भी जो है पूरा जो है उसको डिवाइड, वार्ड में डिवाइड कर, इसको भी जो है, इसका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा इनडायरेक्टली जो है इलेक्शन के थ्रू होता है। इसमें भी यूं कह दें कि हम लोग पूरे उस सिटी के डेवलपमेंट के लिए यूं कह दें कि सप्लाई ऑफ वाटर है, जो डे टू डे रिलेटेड इश्यूज है वो सारे म्युनिसिपैलिटीज में होते हैं। और अगर हम ये बात करें कि म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड है वो किस तरह से होता है, तो दैट इज नोन एज अ म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज हम बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो इसके अंदर भी यही होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो होता है वो मेयर होता है, ठीक है। और उसके लिए मेयर को कैसे चुनते हैं? मेयर को चुनने का तरीका यह है कि उस सिटी को वार्ड में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर वार्ड में से क्या होता है, हम लोग पार्षद जो है वो चुनते हैं, फिर जिस पार्टी के सबसे ज्यादा होते हैं उसी में से मेयर का इलेक्शन होता है, यानी वो पार्षद मिलकर ही मेयर को चुनते हैं। तो दिस इज द सिस्टम इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये अगर हम वही मतलब अगर इनके सेपरेट फंक्शंस बढ़े तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बहुत जरूरी वाले फंक्शंस भी है, दैट इज वी कैन से दैट दीज आर नेसेसरी
और सम आर वेरी ऑप्टिमल फंक्शंस जिनमें वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो जो है फंक्शंस को करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक टॉपिक इज नाउ हियर कंप्लीटेड, और इससे आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर क्या किस तरह से लेवल का जो है किस लेवल से पार को डिवाइड किया गया है। अब बात ये आती है कि इनके अचीवमेंट्स क्या रहे, कि भाई अगर हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया है, द पावर इज द सेंटर एंड स्टेट पावर इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, तो उसके अचीवमेंट क्या रहे, क्या कोई फायदा हुआ इस चीज को। तो हम ओवरऑल अगर एक व्यू देखें तो उसमें क्या देखा कि पहले जो प्रॉब्लम थी रेगुलर इलेक्शन की, वो इलेक्शन होने लगे, प्लस आज लोग जितने विजिलेंट हैं, जितने एक्टिव हैं, और जिसको कहा जाए कि देश के बारे में जितनी समझ है, डेमोक्रेसी की समझ है, तो वी कैन से दिस इज द बिकॉज ऑफ द शेयरिंग पावर टू गिवन द पावर टू लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज पीपल क्या है मोर अवेयर, नाउ दे बिकम मोर अवेयर अबाउट द पॉलिटिकल फिनोमेना कि देश में क्या हो रहा है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि लोगों को लोकली पार्टिसिपेट करना आ गया है। नाउ द पीपल दे पार्टिसिपेट लोकली इन टेकिंग डे टू डे डिसीजन, तो डेमोक्रेसी की समझ बढ़ी है, इलेक्शंस हुआ, प्लस विमेन रिप्रेजेंटेशन, इट्स वी कैन से यूनिक फीचर, जहां पर हम राज्यसभा लोकसभा जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि विमेन का जो रिजर्वेशन 1/3 नहीं है, और कई स्टेट्स में उन्होंने बताया कि 50% कर दिया है, तो रिप्रेजेंटेशन हुआ है लोगों में, जो विमेन के जो राइट्स हैं, जिसको जिसमें कहते हैं ना अवेयरनेस भी आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहां पर पहले ये चीजें नहीं थी, वो अब चीजें परफेक्ट, फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग होने लगे, रिसोर्सेज हैं इनके, और अगर फाइनेंशियल अगर रिसोर्सेज कम है तो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ इट इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको एड दे और उनको जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने लेवल पे ही वो उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। कई बार तो आप कहते हैं ना मॉडल विलेज बने हैं, तो उनमें आप यूनिक चीजें देखेंगे, वहाँ के रोड का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वो बहुत मतलब बढ़िया वाला उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये सारी हम अचीवमेंट्स ही कह सकते हैं कि इसने डेमोक्रेसी को क्या और डिपेंड किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आने से क्या डेमोक्रेसी और डिपेंड हुई। ये एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है कि इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स इसमें अपने अकॉर्डिंग और ऐड कर सकते हैं। अब अचीवमेंट्स हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो चैलेंजेस क्या है। हमने रेगुलर इलेक्शन की बात तो कर ली, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनल, देखो हम जो है आपके क्लास 10th में अभी और हम कुछ टॉपिक्स करेंगे जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब उसमें क्या होता है बच्चों कि ये भी एक चैलेंज है, ये चैलेंज ना केवल लोकल पूरी कंट्री के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक पार्टी के अंदर कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, वो इनिशियली these leaders they take the decision, and another members who are also the members of those party, they are ignorant of those the decision which was taken by the big leaders और prominent leaders। तो अंदर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि लोगों को पूरा जो है पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। प्लस आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर जो स्टार्टिंग से लीडर्स प्रोमिनेंट आज भी वही है, जो यंग है, जो बहुत जिसको इनोवेटिव आइडियाज जो हो सकता है मेंबर्स के और हो, जो हमारे देश में और अच्छा सुधार कर सकते हैं, उन्हें आगे आने का मौका नहीं मिलता। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। प्लस हम इंटरनल डेमोक्रेसी इसे कहेंगे जहां पर पार्टीज के मेंबर्स सिर्फ नॉमी उस मेंबर्स तो है, रजिस्टर्ड है, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। सेकेंड इसमें और हम देखते हैं कि अगर ग्राम पंचायत के अगर हम चुनाव देखें तो उनमें इलेक्शंस तो रेगुलर होते हैं, लेकिन ग्राम सभा की जो यूं कहा जाए कि उनमें इलेक्शन रेगुलर नहीं होते, मतलब उनके थ्रू जो इलेक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, मीटिंग्स टाइमली नहीं होती या कम मीटिंग्स होती हैं। तो इस प्लस ये एक चैलेंज हो सकता है। प्लस फाइनेंशियल रिसोर्सेज की दीज आर नॉट वेरी इलेबोरेटली दैट इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें सिर्फ लिखा हुआ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। सेकंड थिंग ये लिखिए कि स्टेट जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्लस पॉलिटिकल पावर्स को शेयर करेगी, लेकिन कई तो ऐसे स्टेट्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट को नहीं शेयर करती, तो उस समय कोई भी स्टेप्स लेने की वहां पर जो है नहीं हो सकता, दैट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा देश जो है यहाँ का जितना भी काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो चीजें स्पेसिफिकली दी गई है वो फॉलो हो रही है, जो चीजें सिर्फ यूं कह दें कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं है तो वो उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। Some other challenges are also
जहां पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली जो चीजें हैं, हम लोग थ्योरेटिकली जो चीजें पढ़ते हैं दिस इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम प्रैक्टिकल फिनोमिना। उसमें बिल्कुल अलग होता है, उस ग्राउंड के ऊपर वो कैसे सक्सेसफुल है कैसे नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। लोगों को अंदर मतलब यूँ कहा जाए अवेयरनेस नहीं है फॉर जस्ट यू कैन से चूजिंग द कैंडिडेट। अब हम ग्राम सभा के अंदर भी देख रहे हैं कि पीपल सारे पार्टिसिपेशन है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसे मेंबर्स को चुन लें क्योंकि वो बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर है, तो उनके ऊपर सुपरविजन के लिए भी कुछ नहीं है कि जिन जिन मेंबर्स को ये ग्राम पंचायत के सरपंच पंच बना रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही लोग हैं या लोगों के लिए काम करेंगे। तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो कि चैलेंजेस हैं और अभी भी, लेकिन बट वी कैन से इन द लास्ट because these are the positive points also that the powers are decentralized in India in 3 levels, and the last level the local government it's enhancing its powers and we can say efficiency day by day, क्योंकि ये ज्यादा लोगों में क्या गया है। देखो सबसे बड़ी बात मैं एक ही लास्ट में एक चीज कहूंगी कि किसी भी देश की डेमोक्रेसी वो कब सक्सेसफुल होगी, थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जितना ज्यादा हमारा पार्टिसिपेशन होगा, हम जितने ज्यादा विजिलेंट अवेयरनेस रहेगी उतना ही ये पॉलिटिकल जो यूनिट्स है वो सक्सेसफुल। तो अभी आज ये लास्ट आपका चैप्टर जो मतलब टॉपिक कंप्लीट हुआ आज यहाँ पर, और हमने स्टार्टिंग से लेकर एक बार जो है लास्ट तक इसको रिव्यू करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा। वो थोड़ा सा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और आज अगर टाइम से बचता है तो हमने जो क्वेश्चन पूरा मतलब जो टॉपिक्स किए हैं उसके छोटे छोटे से एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें चैप्टर का जिस समझ में आया, चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। अगर प्रॉब्लम है तो हैंड टू हैंड आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, और आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। एंड इट इज essential and necessary for all the students, they have to do these work in their homework copied and sent to me on my WhatsApp number। तो सबको होमवर्क भेजना है, क्योंकि जैसे स्कूल के अंदर जो टिकिंग पैटर्न है ना वही पैटर्न होगा, हर बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस बच्चे ने होमवर्क सेंड किया किसने नहीं, नहीं तो फिर कॉल आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप लोग अपनी ड्यूटी को फुलफिल करें। हम आप जो है आपका जो राइट था वो हमने फुलफिल कर दिया कि आपको बेस्ट एजुकेशन दे। नाउ इट इज योर ड्यूटी that you should complete your homework timely and send to your concerning subject teacher। चलिए अब हम स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को सभी बच्चे। थोड़ा सा रिकैप्चुलाइज कर लेते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या था कि फेडरलिज्म इज सिस्टम जिसमें पावर को किसमें शेयर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट। कॉन्स्टिट्यूट यूनिट क्यों कहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का और क्या देखा था हमने, 2 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। एंड सम कंट्रीज हैव मोर देन 2 लेवल्स लाइक इंडिया, लाइक बेल्जियम, लाइक स्पेन, जहां पर 2 लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट होती है। जैसे हमने क्या कहा, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। हर लेवल, ईच लेवल मैनेजेस एंड मेक्स द लॉज फॉर ओन टेरिटरी। अब मैंने अभी क्या कहा, जैसे सेंटर, सेंटर इज आंसरेबल टू द पीपल नॉट टू स्टेट, और स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंटर, लाइक लोकल इज ऑल्सो। ऑल आर आंसरेबल, ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू द पीपल। चलिए नेक्स्ट क्लास, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू द अदर, यानी सबकी पावर अपनी अपनी अलग सेपरेटेड है, एक दूसरे पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता। यूनिटरी सिस्टम और फेडरल फॉर्म सिस्टम में हमने जो है डिफरेंस देखा था, फटाफट करते हैं। यूनिटरी सिस्टम में हमने क्या देखा था, यूनिटरी सिस्टम ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, केवल 1 लेवल गवर्नमेंट होती है, और अगर सब यूनिट्स होती है तो वो क्या होती है, ओनली दोज आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑन द ऑर्डर्स टू अदर लेवल। सेकंड हमने क्या देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू पास एनी ऑर्डर टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये सब यूनिट्स की पावर्स को ले सकती है, सब यूनिट्स को डिसॉल्व भी कर सकती है। एंड द थर्ड इज अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट,
यानी जो सब यूनिट्स है, these are only subordinate to central government, these have no separate jurisdiction, no separate power. Features of federalism, 2 or more levels, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. Each level is own jurisdiction. Jurisdiction I explained you before कि geographically area है, resources है, all areas is specified. They have the power to take decision of administrative, legislature and financial. Each level jurisdiction is specified. Fundamentals of constitution can be changed by central level itself. Cannot be changed. तो मैंने आपको बताया था यूनिलैटरली कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला सकते. इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उन्हें दोनों लेवल, बोथ द हाउसेस assent is necessary to bring any change or any amendment in our constitution. कोर्ट क्या काम करता है? कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो हमारे जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनके वर्क को देखता है, प्लस अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उन डिफरेंसेस को जो है, जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करता है, एज ए एम्पायर वर्क करता है. रेवेन्यू सोर्सेज जो है इस लेवल के स्पेसिफाइड है, मैंने आपको पहले ही बताया था. और लास्ट में देखिए फंडामेंटल फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है. वो क्या है? safeguard and promote national unity and accommodation of regional diversity. Types of federalism देखा था, बहुत अच्छी तरह बताया था. coming together, जिसमें इंडिपेंडेंट, जैसे हम सीधे दिमाग में यूएस आता है हमारे, उसमें क्या आता है? यूएस के अंदर क्या हुआ था कि उस समय जब कॉलोनाइज हुआ था तो ये डिफरेंट स्टेट थे, तो इन स्टेट्स को लगा कि हम दोबारा से ऐसा ना हो जाए, तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हम एक बिग यूनिट बनाएंगे. Independent states come together and form bigger unit. It also helps to maintain security and sovereignty, है ना? Each state is equally strong. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि sovereignty means decision taking power उनकी sovereign रहेगी, यानी अलग रहेगी, उनकी आइडेंटिटी अलग रहेगी, लेकिन सिक्योरिटी उन्होंने मेंटेन कर ली, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. Now holding together, you as you can see on picture also. देखो होल्ड कैसे कर रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, और सेंटर में जो है हमारा पार्लियामेंट है. तो उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट देखो बिगर साइज, यानी ये पावरफुल है, इन्होंने इस पावर्स को क्या किया है, इन स्टेट्स को शेयर कर दिया. डिवाइडेड इनटू स्टेट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, accommodation diversity. Some states might be given more power. मैंने आपको बताया था, जैसे यूनियन टेरिटरीज का बताया था. जम्मू कश्मीर को मैंने नहीं डिस्कस किया था, जबकि आपके बार बार क्वेश्चन आएगा जम्मू एंड कश्मीर का, तो आप कर लेना. लेकिन मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि सारे चेंजेस हो गए, हो सकता है न्यू जब बुक्स आएंगे तो उनमें चेंज होंगे. इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. चलिए, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? वो कौन से हैं? द डिवीजन ऑफ पार्ट्स. तो डिवीजन ऑफ पार्ट्स मैंने बताया था, पार्ट्स आर डिवाइडेड between these three levels through 3 lists. What are these? Union, state, concurrent and residuary. Some states are given more powers, जिसमें यूनियन टेरिटरीज से एग्जांपल बताया था. जोग्राफिकल एरिया हो सकता है, कल्चरल एरिया हो सकता है, इसलिए इनको पावर्स दी गई. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी अमेंडमेंट होगा तो यूनिलेटरली चेंज नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एसेंट भी एसेंशियल है. यूनियन टेरिटरीज का क्लियर बताया. जुरिडिक्शन का क्या है? कोर्ट, दे इंटरप्रेट बोथ द पार्ट सेपरेटली, पार्ट्स आर इंटरप्रेटेड, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो कोर्ट इनको रिजॉल्व करती है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या देखा कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने देखा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ठीक है, क्लियर? डिवीजन ऑफ पार्ट्स अब आ गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कर. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट के जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको 3-4 सब सब्जेक्ट आने चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है. विच सब्जेक्ट इज नॉट फॉल इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, सम टाइप, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो ये हो गया कॉन्करेंट और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट. क्यों, कौन से होते हैं? 2 सब्जेक्ट विच आर न्यूली एडेड इन द लिस्ट. क्योंकि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था या हमारा देश आजाद हुआ था, तब तक ये सब्जेक्ट नहीं थे, और वो स्पेशली सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ओनली हैज राइट टू मेक लॉज ऑन देम. ये जो मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, उन्हीं पे क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके. लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर फॉर्म्ड. ये क्वेश्चन आपके आता है. स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर. कल्चर बेस्ड आपको बताया, जैसे कि आप नीचे कल्चर बेस्ड पढ़ेंगे, जैसे एथनिसिटी एंड ज्योग्राफिकल, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये वो एरिया है जहाँ पर, जैसे मैंने नागालैंड का बताया था, नागा ट्राइब्स है. उत्तराखंड जो है बिल्कुल हिल्स एरिया में सेपरेटेड एरियाज है. झारखंड ट्राइबल एरिया है.
some were concerned that it might lead to, लेकिन हमारे लीडर्स को लगा था कि शायद हमारा देश जो है इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इट वर्क इफेक्टिवली, क्योंकि लोगों को लगा कि स्टेट के पीपल को लगा वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंटर एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग सेपरेट पार्ट। लैंग्वेज पॉलिसी देखी कि इंडिया की कोई भी है ना जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द रीजन क्यों है, 40% पीपल स्पीक हिंदी और इसके सेफ गार्ड है। 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को हमने इंक्लूड किया है, यानी बोथ ऑल दीज लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, प्लस ये जो है नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज की है। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेजेस इन इंडिया टू अवॉइड द सिचुएशन। श्रीलंका में क्या होता, सिविल वॉर हो गया था लैंग्वेज के कारण, सिनाला लैंग्वेज को वेजिटेरियनिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया, जबकि इंडिया के अंदर इन सब चीजों को अवॉइड किया। हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस सेंट्रल स्टेट रिलेशन, मैंने आपको क्लियर किया था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, शुरू में क्या था, स्टेट क्या था कि उसकी कोई ऑटोनॉमस पावर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ कि जब कॉलेशन एरा आया, सिंगल पार्टी सिस्टम था कांग्रेस का मैंने बताया, तो जब कॉलेशन एरा आया तो उस समय स्टेट पार्टीज को भी क्या हुआ, रिकॉग्निशन मिलने लगा, जैसे मैंने AIDMK बताया था, बीजू जनता दल बताया था, ये पार्टीज थी। तो अब कोई भी अगर डिसीजन लेना है सेंटर को तो क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ेगा, उनका भी असेंट जरूरी है। तो अब दोनों का रिलेशन क्या होगा, कॉर्डियल रिलेशन, एग्रीड होना बहुत जरूरी है दोनों का आपस में, जिसको कहते हैं ना हर उसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन कंपल्सरी हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, टुडेज पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव देन इट वाज प्रैक्टिस इन द अर्ली डेज व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, अभी समझाया, 2 दिन से यही टॉपिक चल रहा था, जब पावर को हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया स्टेट और सेंटर की, इससे फायदा क्या हुआ, रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, help the increase the participation of people in democratic process, solve local problems efficiently, local self government is called schools of democracy। अभी बताया ना, लोगों को नॉलेज बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ गई, इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। जैसे मैंने क्या कहा, ग्राम सभा क्या करती है, पूरे बजट को देखती है, तो पार्टिसिपेशन हुआ। मोर पावर्स कैसे दी गई, 19, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, और ऐसे ही पॉइंट्स लिखने। 1992 एम्पावर द थर्ड लेवल, रेगुलर इलेक्शन हो गया, रिजर्वेशन SC/ST, 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन, स्टेट फॉर एड फाइनेंशियली टू LSD लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म, ठीक है। और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, आज ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ये वही है, जिला परिषद कैसे है, ब्लॉक समिति कैसे है, देखो जिला परिषद, ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत। तो सबसे ऊपर जो अपेक्स बॉडी है ये, फिर सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है। अर्बन सेल्फ म्युनिसिपैलिटी है, ये लोकल टाउन में होती है, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बाय द सिटीजन। पॉलिटिकल हेड म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, सिटी लेवल पे होता है। पॉलिटिकल हेड कौन होता है, मेयर होता है, और इसको इलेक्ट कैसे करते हैं, सिटीजन करते हैं, जैसे वार्ड के थ्रू मैंने आपको बताया। तो डेफिशिएंसी ऑफ क्या है, फाइनेंशियल नीड, ये प्रॉब्लम्स है। इरेगुलर मीटिंग्स है, वुमेन इनएक्टिव पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन तो है लेकिन इनएक्टिव है, और ये सारे उसके चैलेंजेस हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका, PPT के थ्रू भी हमने चीजों को समझा, ठीक है। और कल मेरी कोशिश है आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करके आपके साथ असाइनमेंट करूंगी। तो आई होप कि जो पूरा चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छी तरह, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा, कोई भी मेरे हिसाब से वर्ड नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आया हो और आप ना कर सकें। तो कल हम आपके साथ असाइनमेंट शेयर करेंगे, जैसे हम, आप प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाना। नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए, उन सिर्फ नोट्स को ही पढ़ लेंगे तो भी आपको कल पूरा असाइनमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे।